थ्योरम। थ्योरम क्या है? रिजल्ट एक्चुअली। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑन द set of all groups is an equivalent relation। ठीक है, प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ बहुत ही आसान है। कैसे? लेट एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स। ठीक है, और G1 is isomorphic to G2, read as G1 is isomorphic to G2 if and only if there exists F from G1 से G2 such that F is a bijection and F of x1 is equal x1 y1 is equal to f of x1 f of y1 for all x1 y1 belongs to G1। आइसोमॉर्फिक का डेफिनेशन, तो G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 कब? जब G1 से G2 के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिले। ठीक है, तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है। ये रिलेशन क्या है? अब हमें क्या प्रूव करना है? वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। वे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सबसे पहला इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब लेट G बिलोंग्स टू S। ग्रुप है, सेट ऑफ ग्रुप है, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ग्रुप होगा। कंसीडर द आइडेंटिटी मैप f of x is equal to x for all x belongs to G, then f of x1 is equal to f of x2 if and only x1 is equal to x2, है ना? That is f is 1 1 and well defined। Also for any x belongs to G, there exists x belongs to G such that f of x is equal to x, that is f is onto, तो बाइजेक्शन हो गया, and f of xy is equal to xy is equal to fx fy for all xy belongs to G, hence f from G to G is an isomorphism, implies G is isomorphic to G for all G belongs to S। हाँ या नहीं? G का हर एक एलिमेंट के लिए। तो हम रिफ्लेक्सिव क्या करता है? रिफ्लेक्सिव होता है A is related to A for all A belongs to S। तो वही हमने प्रूव कर दिया, G is isomorphic to G for all G belongs to S। हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हमें क्या करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या हम जानते हैं कि x रिलेटेड टू y, ये इंप्लाई करे y रिलेटेड टू x। तो कंसिडर करते हैं लेट
G comma H belongs to, या G1 comma G2 belongs to S, such that G1 is isomorphic to G2, implies there exists F from G1 to G2 such that F is bijective and F of xy is equal to Fx Fy for all xy belongs to G1. Since F is a bijection, so there exists F inverse from G2 to G1, defined as F inverse y is equal to x if Fx is equal to y. क्लियर, ऐसा मिलेगा here F inverse x y1 is equal to F inverse y2 if and only x1 is equal to x2, where F of x1 is equal to y1 and F of x2 is equal to y2. डिफाइन ऐसे किया गया, दिस इम्प्लाइज x1 क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज f of x1 is equal to f of x2. क्यों, सिंस f is 1 1, या f वेल डिफाइंड है, x1 is equal to fx1 is equal to fx2 वेल डिफाइंड, इसीलिए दिस इम्प्लाइज y1 is equal to y2. therefore f inverse is 1 1 and well defined. Also f inverse y1 y2 is equal to क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई नहीं लिख के इसको हम लिख दें x1 x2 is equal to f of x1 f of x2, ज़्यादा अच्छा रहेगा. for all x1 x2 belongs to G, this implies f1 हमने लिखा y1 belongs to G1 G2 implies there exists x1 f of x1 is equal to x2 y1 on f of x2 is equal to y2. तो f of, हम जानते हैं f इनवर्स f इज आइडेंटिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स f of x1 f of x2, where f of x1 is equal to y1 and f of x2 is equal to y2, ऐसा एग्जिस्ट करेगा. दिस f inverse of f of x1 x2, क्यों, since f of x1 x2 is equal to f of x1 f of x2, ऐसा है, हाँ या नहीं, यहाँ तक कोई इश्यू. तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये फर्दर इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज f inverse y1 y2 is equal to f inverse f is equal to x1 x2, क्यों, since f inverse f is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि f इनवर्स को हम डिफाइन इस तरह से किए हैं. दिस इम्प्लाइज f इनवर्स y1 y2 is equal to f inverse y1 f inverse y2. क्लियर, hence f inverse is an isomorphism
from G2 to G1 implies G2 is isomorphic to G1। सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हमने प्रूफ कर दिया। ट्रांजिटिव शो करने के लिए लेट G1 G2 G3 belongs to S be such that G1 is isomorphic to G2 and G2 is isomorphic to G3 implies there exists F from G1 to G2 and G from G2 to G3 such that F and G क्या, हाँ ये दोनों इम्प्लाई क्या करेगा, G1 आइसोमॉर्फिक G2 तो एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा F, और ये इम्प्लाई कर G2 इज आइसोमॉर्फिक G3 तो एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा G, तो देयर such that F and G are isomorphism such that where F and G are isomorphism। ठीक है, कंसीडर GOF फ्रॉम G1 से G3। क्लियर है, ये है G1, ये है G2 और ये है G3। F यहाँ से यहाँ तक है और G यहाँ से यहाँ तक है, तो GOF मतलब G ऑफ F ऑफ X, तो GOF X क्या होगा, तो X F1 पे डिफाइंड है तो G1 से G2 पे लेके आएगा, और G जो है G2 पे डिफाइंड है और इसको उठा के लेके कहाँ लेके G3 पे, तो GOF G1 से G3 पर होगा मैथ। ये तो क्लियर, कंसिडर GOF फ्रॉम G1 टू G3। ठीक है, देन GOF is bijective as both G and F are bijections। हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन। क्यों प्रूफ करें बार बार एक ही चीज को, यहाँ पहले प्रूफ किए हुआ है ना, जरूरत पड़े तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं प्रूफ करने का। F G और F दोनों बाइजेक्शन है तो G भी एक बाइजेक्शन होगा। उसके बाद जो है एंड GOF X1 X2 is equal to G of F of X1 X2, हाँ या नहीं, और G of F of X1 F of X2 implies GOF G of X1 G of F X2 implies GOF X1 GOF X2, hence GOF from G1 to G3 is an isomorphism for all X1 X2 belongs to G1। therefore यहाँ लिख देते हैं, therefore hence is an equivalence relation on S set of groups। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि every equivalence relation gives a partition of the set। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, हर एक पार्टीशन के लिए भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म एक इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ऑफ ग्रुप्स को, तो ये इसको इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक करेगा। इक्विवेलेंस क्लासेस में ऐसा क्लासेस में
कि किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम मान सकते हैं जैसे कि 1 ऑर्डर के ग्रुप होंगे, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के, 5 ऑर्डर के, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यदि फाइनाइट ग्रुप है इस ऑर्डर्स के होंगे, तो 1 ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे वो अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने होंगे। कहने का सेंस कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म इसमें कितने तरह के सब ग्रुप्स हो सकते हैं। हो सकते हैं ऐसा कि 1 ऑर्डर का एक ग्रुप हुआ G1, दूसरा एक ग्रुप होगा G2 जिसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो क्या ऐसा ग्रुप मिलेगा G1 विच इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2 एंड ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम इक्विवेलेंस क्लास में पढ़े हैं कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2, यानी कि हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ G1 क्या होगा, G2 बिलोंग्स टू एज सच दैट G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। इसी तरह हम इक्विवेलेंस क्लास रिप्रेजेंट करते हैं कि G1 के जितने भी आइसोमॉर्फिक होंगे उसको हम एक मानेंगे, मतलब उस सेट में आएगा। और यही यदि G2 इसके आइसोमॉर्फिक है तो क्लास ऑफ G2 इक्वल टू क्लास ऑफ G1 होगा। तो यानी कि यदि G1 G2 के आइसोमॉर्फिक है, G1 G2 का आइसोमॉर्फिक है, तो इसको हम दो क्यों माने, इसको एक ही क्यों नहीं माने। ठीक है, तो अब जैसे हम एक साइक्लिक ग्रुप है 4 ऑर्डर का +-1 और प्लस आयोटा, और प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है 4 ऑर्डर का, इसको हम C4 मान लेते हैं और Z4 मानते हैं। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, 4 है। और हमने प्रूफ किया है कि 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। हमने ये प्रूफ किया हुआ है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक, यानी कि C4 और Z4 आइसोमॉर्फिक होंगे। C4 एंड Z4 आर आइसोमॉर्फिक। तो 4 ऑर्डर का कोई ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप, तो उसको हम अलग नहीं मानेंगे, वो एक ही है, सारे ग्रुप एक ही है। किसका आइसोमॉर्फिक है, Z4 के, उसका रिप्रेजेंटेटिव हम Z4 मान लेते हैं। तो जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के एक है, लेकिन Z4 में एक ये भी देखो Z2 ये भी हमने देखा, इसका ऑर्डर कितना है, A क्रॉस B होगा ना इसके एलिमेंट, तो 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट है। Z2 में कितने एलिमेंट है, Z2 हाँ 0 और हाँ, तो ग्रुप का ही ऑर्डर पूछ रहा है ना, ये तो ग्रुप हुआ ना। ये जो Z एक हमने G माना, कैसा ग्रुप माना, Z2 प्लस Z2, मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 प्लस Z2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 है, तो ये साइक्लिक नहीं है। जब ये साइक्लिक नहीं है तो नॉन साइक्लिक ग्रुप के तो आइसोमॉर्फिक होगा नहीं, मतलब 4 ऑर्डर का हमें एक ऐसा और ग्रुप मिला जो कि साइक्लिक नहीं है, तो मतलब ये दोनों अलग हुए, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब क्या और भी तीसरा हो सकता है, ये तो अबेलियन ग्रुप होगा, हम ये प्रूव करेंगे हमेशा अबेलियन होगा। ठीक है, 4 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा, ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो हम कहना चाहते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, मतलब कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होंगे 4 ऑर्डर के। समझ में आ रहा है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। ठीक है, अप टू आइसोमॉर्फिक मतलब नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। आइसोमॉर्फिक हमारा काम का ही नहीं है, यदि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का आइसोमॉर्फिक हो गया तो हमारा कोई काम का नहीं, एक ही ग्रुप हो गया, तो हमें नॉन आइसोमॉर्फिक खोजना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू आइसोमॉर्फिक का मतलब समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 4 एंड ऑफ ऑर्डर 6। दो अलग अलग क्वेश्चन है,